तो यूट्यूब से ज्यादा इस टाइम टिकटॉक को आप प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि टिकटॉक पे अभी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, आपकी यूट्यूब पे इतनी मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बट टिकटॉक पे आजकल बहुत जबरदस्त ऑर्गेनिक। Yeah. Sambhav came up with, he's learning with social media marketing. Learning a new skill is definitely one thing that everyone should do this time. Yeah, and definitely social media marketing is a thing which is thing of the future. मतलब बहुत it is a, in my opinion, it is going to be a really big industry, and that's for sure. Right. And with people writing, they're learning video editing, they're learning brush calligraphy. So let's start with your journey, Prince. How's it been with you? When did you graduate? What are you doing currently? Can you tell us something about yourself to all the people out there? Sure. So basically, I completed my 12th in 2014, right? And after that, I joined SRCC. But that is the thing which I tell everyone. So like after joining SRCC for a year, I dropped out of it to join Shahid Sukhdev College of Business Studies. So basically, people know me as the one who dropped out of IIM Calcutta. But that journey started long ago with SRCC itself. So I dropped out of SRCC. For the same reason I dropped out of IIM Calcutta. The reason was that I always believed in doing what I love, and the thing which I prioritize over other things. So basically, it was a blend of mistake. Obviously, we make mistakes, and when I was in 12th, obviously when I completed my 12th, it was a mistake, but it was kind of helpful, right? So yeah, I dropped out of SRCC because I was pursuing BCom honors there, and I wanted to learn about computer science, be a graduate in computer science. So I joined Shahid Sukhdev College. After dropping out of SRCC, I joined Shahid Sukhdev College of Business Studies in 2015 in computer science honors, right? So a lot of people don't know that Sukhdev also offers computer science honors apart from BMS and BFIA. But then I started a YouTube channel with the name of Prince Academy in 2016, right? And it was the year when I started a YouTube channel. But I've been teaching class 12 students for I guess 2 or 3 years back then. So teaching was kind of my passion. I really enjoyed teaching. So I saw this big opportunity, which was YouTube, that I just created a calculation myself that YouTube is going to be a big educational platform in the long run, right? So I started a YouTube channel in 2016 when I was in when second year was starting for me in Sukhdev, right? So I started a YouTube channel there. Then the YouTube channel itself grew, and I graduated in 2018, and then I gave CAT in 2018. But and I got into IIM Calcutta, right? I got the admission letter from IIM Calcutta, and I got admission into all the major IIMs except IIM Ahmedabad and Bangalore. So I got admission into all the major IIMs, including Calcutta. But then my YouTube took off so well. I was it was going so good financially, as well as by the work I was doing. So I decided to drop, and the part of dropping IIM Calcutta was, I want to be really, I want to make sure one thing, I want to clear one thing to my audience, that I dropped out of IIM Calcutta not because I don't want to do an MBA, right? I will definitely be doing an MBA, and this is again, this is my point of view. Although the narration of not doing, not completing your studies and or doing MBA is pretty popular right now, but in my opinion, education is really important. Being an educator myself, I really promote the notion of education. I'm going to do MBA, but the reason why I didn't join IIM Calcutta was because IIM Calcutta was a finance campus, and I did finance, right? So I don't like finance, and I got the option of YouTube. YouTube took off for me really well. At the same time, I got admission into IIM Calcutta, so I had the option that here is something which I am doing really good at. I'm really passionate about, and I'm really I'm making equivalent of what an IIM graduate would be making, right? So I said, why not go for it and then pursue an MBA after 3, 4, 5 years? Whatever the scenario would be, right? Do an MBA after that and do it in a field which I love. So basically, all my life I've been doing what I think I feel passionate about and which I love.
Right. So that That perfectly makes sense. But I think before coming to the aspect of YouTube, why not let's start from the start? You mentioned you dropped out of SRCC as well. I remember we talking about this the first time that we met, but मैं शायद भूल गया था अभी तक. So what was that? What was that decision? You got into SRCC. Why did you drop out of that? यार SRCC का अगेन छोड़ने का रीजन वही चीज थी. मतलब ये चीज I would like to टेल everyone. मैं जब YouTube पे भी वीडियो बनाता हूँ, बच्चे मेरे से पूछते भैया मैं करियर को लेकर कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या करूँ. That is the thing I always practice and I always preach this, that you should do what you love, right? And if you look at my YouTube videos, in fact I have this with me as well. So there's this Steve Jobs poster which is always there at my back, and this is what I learned from Steve Jobs. I'm a big follower of him, and his life has influenced my life decisions a lot. And why I dropped out of SRCC, again it was the same reason that I got into BCom honors, right? But from the very beginning, from my childhood, I was so much interested in computers, and I was like यार BCom honors में चला गया हूँ. But ये एक चीज है which I always wanted to do, and अगर मैंने इसमें graduation complete कर ली, तो 10 years when I look back, I will always live my life with the regret कि यार प्रिंस जो तुझे पसंद था तूने वो नहीं किया, तूने वो चीज करी जो सोसाइटी का एक प्रेशर था, राइट? एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स. मुझे ये था कि भाई चलो ठीक है, बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से करूंगा, एक प्रेस्टीज है, एक एश्योरिंग करियर है, राइट? दैट वाज द थिंग विद एसआरसीसी. पर मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है. मेरा सेटिस्फैक्शन यही है कि यार मैं अपने बचपन की जो ड्रीम थी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, उसको मैं डेफिनेटली करूं. इनफैक्ट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरा क्या सीन था. मेरा सीन ये था कि मेरा बिल्कुल श्योर था कि मैं बीसीए करूंगा क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद. बट हुआ क्या यार, एक बच्चा, आई वाज द किड जो मतलब अपनी लाइफ में जिसने कभी 50% से ऊपर नहीं स्कोर करे. लिटरली मेरी लाइफ मैंने 50% से ऊपर कभी स्कोर नहीं करे थे. Guys, one second. Guys, do any of you believe कि जिसको SRCC BCom ऑनर्स में एडमिशन मिला उसने कभी जिंदगी में 50% से ऊपर स्कोर नहीं करा? Yeah, that happened to me, bro. Like मुझे 5th class में, I'll tell you one thing. This is a story. I have talked. मतलब मैंने कभी भी इसके बारे में बात नहीं करी है. YouTube पे भी नहीं है ये वाली स्टोरी. 5th class में मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक स्कूल में एडमिशन कराया था. Apparently we were like really financially constrained at that time. तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे एक ऐसे स्कूल में डाल दिया था जिसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन कम रहता. बट वहां पे क्या हुआ, द टीचर टोल्ड मी देयर कि ये कभी नहीं पढ़ सकता, ही इज नॉट केपेबल ऑफ स्टडीइंग, ही कैन नॉट study in his life and we don't want him in our school. तो मेरे घर वालों को दोबारा अपना मेरा स्कूल चेंज कराना पड़ा था. I was so poor at studies at that time. तो मतलब I was so damn poor. और उसके बाद क्या हुआ, एकदम 12th में इतनी ज्यादा अच्छी परसेंटेज आ गई in the persons with disability category, like in the blind category. I am partially blind. तो उस कैटेगरी में I was like rank holder. I was like on the 3rd position, 2nd or 3rd, I don't remember the exact number, but I was on the 2nd or 3rd position. एंड सडनली क्या हुआ, एकदम से जो बच्चा पास नहीं हो रहा अपनी लाइफ में, 50% बैठता हुआ, एकदम से उसकी इतनी परसेंटेज आ रही है, वो एसआरसीसी में पहुंच रहा है. ठीक है, तो इट वाज लाइक कि यार ये चीज तो इट वाज अनकॉम्प्रिहेंडेबल, राइट? तो फिर क्या हुआ कि भाई घर वालों ने भी कहा, मेरा भी मूड बन गया कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना पकड़ूं मैं. मैंने एसआरसीसी ज्वाइन किया. फिर उसके बाद एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा वही रही यार, अगेन इसमें स्टीव जॉब्स की जो एक मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है स्टीव जॉब्स का, कि यार अपनी लाइफ में आप वो करो जो आपको पसंद हो, जो आपकी हार्ट की कॉलिंग हो, वो चीज आप करो. ठीक है, अपना करियर उस चीज में बनाओ, एंड चाहे वो सक्सेसफुल होना हो, बट तुम एक सेटिस्फेक्शन से रहोगे कि यार चलो मैंने वो किया जो मैं करना चाहता, राइट? तो उसी बेसिस पे मैंने एसआरसीसी ड्रॉप किया और मैंने कहा चलो यार, चाहे कम वैल्यूएबल हो, सुखदेव में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स बीएमएस बीएफआई हो, ऑब्वियसली बहुत वैल्यूएबल है. कंप्यूटर साइंस ऑनर्स इतना वैल्यूएबल नहीं है, बट आई टुक द रिस्क, आई टुक द लीप एंड आई जॉइंड सुखदेव. That's something like a really inspiring story when you mentioned that you were half blind and even though you got through SRCC, you grabbed that opportunity and still took a decision. Okay, yeah. Someone just texted. He's a great teacher. He helped me a lot in my BST. So you already have some sort of fan following here, man. Thanks a lot, guys. यार मतलब I feel really grateful. पता है
मतलब मैं आई नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर। अब लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि यार तू एक इन्फ्लुएंसर है, थोड़ा सोच समझ के बोला कर, थोड़ा सोच समझ के पोस्ट किया कर। तो आई एम लाइक यार मैं एक इन्फ्लुएंसर, आई डोंट नो, लाइक पीपल आर फॉलोइंग मी, दैट्स सो सरप्राइजिंग फॉर मी, एंड या apparently people are following me and apparently they love my work, so I feel really grateful when this happens. So you started with YouTube. When did you realize that this could potentially become one of your careers? And what did you start with? क्यों दिमाग में आया YouTube स्टार्ट करते और क्या शुरू किया? यार देखो, मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, अपना करियर किन चीजों पे डिसाइड करो, आपका पैशन और आपकी विजन। These are the two things on which you should decide your career, right? अब इसका क्या मतलब हुआ? पैशन मतलब आपको क्या चीज पसंद है, ठीक है? टीचिंग मुझे इतनी पसंद थी, मैं 12-13 घंटे 14 घंटे की रेगुलर क्लास ले सकता था दिन में, मैंने ली हुई है। तो आई वाज सो मच इनटू टीचिंग कि बिना कुछ खाए पिए आई एम टीचिंग फॉर लाइक 10, 12, 13 hours straight, राइट? तो टीचिंग वाज माय पैशन। पर ऐसा नहीं है आप सिर्फ अपने पैशन से अपना काम चला सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, आपको विजन भी होनी चाहिए। विजन का मतलब क्या है? अगले 5-10 साल में क्या बड़ी चीज होगी, अगले 5-10 साल में कौन सी चीज टेक ऑफ करेगी। तो जब मैंने 2016 में यूट्यूब स्टार्ट किया था, पहली चीज तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि यार बड़ा यूट्यूबर बनूंगा या मेरा करियर बन जाएगा। ये मतलब बैक ऑफ द माइंड कुछ था कि शायद कुछ हो जाए, बट आई वॉज नॉट श्योर ना। मेरा कभी एम था कि मेरे को यहाँ से करियर बनाना है या मेरा कुछ बहुत अच्छा, मैं मतलब इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, दैट इज आल्सो अ बिग थिंग कि हाँ मैं IIM कैलकाटा ड्रॉप करके मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू करूंगा, राइट? तो उस टाइम यार पैशन पढ़ाई था, विजन ये थी कि यूट्यूब अगली बार मतलब अगले 4-5 साल में, इनफैक्ट आई यूज्ड टू टेल एवरीवन अराउंड मी कि भाई देखना अगले 5-6 साल में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे और सब बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे। And that time YouTube was not famous at all, especially as an educational platform, right? तो मैंने उस टाइम अपने पैशन को अपनी विजन में मिक्स किया and I started making YouTube videos and it took off, well, like eventually it took off, right? So that is how I started. And in fact मैं सबको यही कहना चाहूंगा यार, passion and vision, that is necessary. Like what is going to be the next big thing in 5-10 years? अगर आज मैं होता मतलब if I was in first year, second year, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, एज एन एजुकेटर मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है, मेरे को चीजें एक्सप्लेन करना, अपने थॉट शेयर करना बहुत पसंद है। तो इस टाइम मैं टिकटॉक पे होती, ठीक है? मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। टिकटॉक पे बहुत अच्छा अब इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, हालांकि टिकटॉक पे अभी तक तो सब वाहियात चल रहा था मेरे ओपिनियन में, ठीक है? बट अब टिकटॉक पे एडुटॉक इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है? तो वहां पे इफ यू गो थ्रू दैट कंटेंट, गैरी वेनरचक, डिजिटल प्रतीक, बहुत बढ़िया लोग, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आप उस चीज में हो, आप ढूंढोगे तो आपको रियलाइज होगा कि टिकटॉक की वो साइड है जहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है, ठीक है? तो अगेन विजन आपकी होनी चाहिए। एज अ फर्स्ट सेकंड ईयर मैं आपको ये कहूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टिकटॉक पे इस टाइम पढ़ा रहा होता, ठीक है? तो अगेन पैशन एंड विजन, दैट इज राइट। एंड सो प्रिंस, एवरीवन टॉक्स अबाउट कि ठीक है बहुत सारा वो जर्नी देखता है हर कोई, अच्छा इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ये ड्रॉप आउट कर लिया, ऐसा कर लिया, बट एग्जैक्टली जर्नी कैसे होती है? क्योंकि पहले दिन से तो शायद लोग आ नहीं गए होंगे, पहले दिन में या पहले एक हफ्ते में तो 200-300 फॉलोअर्स भी मुश्किल हुआ होगा। पहले तो यार मतलब आजकल तो 100 फॉलोअर्स गेन करना, सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत आसान है। उस टाइम तो जो मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए थे, लिटरली मेड अ 100 सब्सक्राइबर वीडियो। आई गेस मैंने शायद वो डिलीट कर दी चैनल से, मुझे अब रिग्रेट होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट मैंने एक 100 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो बनाई थी, बहुत बेकार सी वीडियो मैंने ऐसे बना के डाली थी। मैंने कहा मीटअप करते हैं, पर फिर मैंने मीटअप नहीं किया। इनफैक्ट मैंने मीटअप कभी इसलिए किया ही नहीं है, मेरे को ना अगेन मेरे को लगता नहीं है कोई मिलने आएगा, मतलब दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग फॉर मी। मुझे इतना ज्यादा कोई एश्योरिटी नहीं है कि हाँ यार मतलब ऐसा कुछ होगा, ठीक है? बट उस टाइम 100 फॉलोअर्स होना भी बहुत बड़ी चीज थी। इनफैक्ट मुझे अपने फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स गेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। मतलब आई थिंक कि मुझे अब यूट्यूब पे 3 to 4 years होने वाले हैं, ठीक है? एंड first 10,000 subscribers were gained in like 2.5 years. And in fact मैं YouTube की जर्नी का अपना बताऊं तो यार लोग बहुत तेजी से गेन कर रहे हैं या कर लेते हैं YouTube पे गेन, कंपैरेटिव, ठीक है? I was so slow in growing on YouTube, so damn slow. बट द थिंग इज कि, और इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसे लोग थे जो बहुत मेरी तरह ही थोड़ी, जिनकी ग्रोथ स्लो थी, ठीक है? कुछ लोगों की बहुत अच्छी थी पर कुछ लोगों की ग्रोथ स्लो थी मेरी तरह। तो क्या हुआ, उन्होंने
इवेंचुअली गिव अप ही कर दिया, उन्होंने इवेंचुअली ड्रॉप ही कर दिया यूट्यूब। पर मेरा हमेशा यार यही था कि यार मैं अपनी पसंद के लिए कर रहा हूँ और मुझे बिलीव है कि कभी ना कभी तो ये चल ही जाएगा। एंड यार स्टार्ट तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, मतलब स्टार्टिंग वाज सो डैम पेनफुल, क्योंकि हुआ क्या था, मेरे को अपने इक्विपमेंट्स लेने थे यूट्यूब पे वीडियो बनाने के, दैट वर ऑफ अबाउट 5000 रुपीज, ठीक है। तो अब 5000, यार सेकंड ईयर कॉलेज का स्टूडेंट था एंड आई डिडंट हैव 5000 रुपीज टू स्पेयर ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने 2 महीने की एक इंटर्नशिप करी, वहां से मेरे पास पैसे आए। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन पे खान अकेडमी के प्रोजेक्ट पे मैंने इंटर्नशिप करी, तो वहां से मोटिवेशन भी आया था, क्योंकि खान अकेडमी, अगर किसी को नहीं पता तो सलमान खान जो है, यहाँ बॉलीवुड वाले नहीं, सलमान खान एक है पर्सनालिटी, उनकी खान अकेडमी है, ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ एजुकेशन ऑन यूट्यूब, राइट। वो पहले इंसान थे जिन्होंने यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस डालनी चालू करी। तो इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन नाउ। तो मैंने उनके पास इंटर्नशिप करी, मुझे पैसे भी मिले वहां और मुझे मोटिवेशन भी मिली वीडियोस बनाने की, क्योंकि जब मैं वहां वीडियोस बनते हुए देखता था, मतलब मैं जब एक्सपीरियंस करता था उस प्रोसेस को, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो वो 5000 अर्न करके मैंने एक इक्विपमेंट लिया, फिर मैंने यूट्यूब वीडियोस बनानी चालू करी। एंड स्टार्टिंग दिस वाज मोस्टली डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग करता था, आई डिडंट हैव एसी एयर कंडीशनर इन दैट रूम, राइट। और 40-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जून जुलाई की गर्मी है, पंखा आप चला नहीं सकते, पंखा इसलिए नहीं चला सकते बिकॉज फिर आपको जिस लेवल की क्वालिटी चाहिए वो ऑडियो क्वालिटी आई नहीं, पंखे की आवाज आ रही है, तो आप खुश नहीं हो उस ऑडियो क्वालिटी से। तो मैं पंखा बंद करके, एसी है नहीं, 7 to 8 आवर्स स्ट्रेट मैं बोल रहा हूँ 40 डिग्री टेम्परेचर में। तो इट वाज द मोस्ट पेनफुल थिंग उस टाइम, बहुत सबसे डिफिकल्ट चीज वो थी, सबसे डिफिकल्ट चीज। फिर इवेंचुअली यार, बट वो एक चीज होती नहीं, आप में एक फायर होती है, आप में एक आप में बस एक बिलीव होता है, आप करते हो वो चीज क्योंकि आपको पसंद है। वो इवेंचुअली मैं करता गया एंड again now I have an air conditioner in my office, so that's a great thing I have now. बट प्रिंस, आज यू मेंशन कि स्टार्टिंग में विजन नहीं था, ठीक है, और आपने बताया फाइनेंशियली कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पैसा, एक एयर कंडीशन नहीं था या 5000 रुपए के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो क्यों कर रहे थे हम वो मेहनत? मतलब जब अगर मैं कुछ विजन, कुछ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव लेके ही नहीं चल रहा कि मैं पैसा कमाने वाला हूँ, और आई एम अ फर्म बिलीवर, अपने एक आइडियल से सीखा है स्टीव जॉब्स। मैं बहुत उस टाइम सबको फॉलो करता था, मतलब अब टाइम ही मिलता तो बात अलग है, बट आई यूज्ड टू फॉलो लॉट ऑफ पीपल एट दैट टाइम, कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। अगर आप इनकी स्टोरीज देखोगे ना, ये सब लोग जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना, यस, मतलब स्टीव जॉब्स का भी, मतलब मैं इन सबको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ यार। अगर आप इनकी स्टार्टिंग स्टोरीज भी देखो ना, इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं अर्न किया था, इन्होंने बस मेहनत करी थी, इन्होंने बस अपनी चीज पे काम किया था जो उन्हें पसंद थी, ठीक है। मतलब एक द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, मैं भी कभी-कभार खुद हैरान होता हूँ कि यार जब कुछ था ही नहीं तो मैं क्यों कर रहा था उस टाइम। तो उसका आंसर यही है यार कि बस यार अपने आइडल से यही सीखा था कि यार आप एक्सपेक्टेशंस मत लाओ, आप लोगों को सर्व करने में बिलीव करो, आप वैल्यू एडिशन में बिलीव करो, ठीक है। आप कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को फायदा हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि नहीं आ रहा, ठीक है, बट विजन क्या, मतलब क्या पहले दिन से दिमाग में था कि हाँ मैं इसको मॉनेटरी स्टेबल बिजनेस बना सकता हूँ या मैं यहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ? क्या ये स्टार्टिंग से दिमाग में था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस मेरे को बस यही बिलीव था कि यार मैं कुछ अच्छी वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, शायद मेरे को फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, शायद मिल जाए। पर वो शायद ही था, मतलब उस टाइम कोई ऐसा फिक्स नहीं था, वो शायद ही था कि यार चलो लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, लोग मेरे को प्रेस कर रहे हैं मेरे काम के लिए, तो शायद कुछ हो जाए फ्यूचर। Right. And what is the current source of income when you say कि एक IIM ग्रेजुएट जो कमाता है, IIM कैलकाटा ग्रेजुएट, आई थिंक कम से कम 20-25 लाख रुपए साल का और एन एवरेज उनका रहता है पैकेज। तो आप कह रहे हो आप यूट्यूब से आप जो भी एक अपना बिजनेस चला रहे हो उससे वो निकाल रहे हो, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर आप प्रमोशनल कंटेंट प्रमोट नहीं करते, इवन आई रीच्ड आउट टू यू कपल ऑफ टाइम्स एंड यू मेंशन्ड कि हम किसी भी कंपनी का मार्केटिंग नहीं करते, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी पैसा दे। सो हाउ डू यू अर्न मनी अर्न करने का यूट्यूब पे सोर्स ये नहीं होता कि आप YouTube के एड से पैसे कमा रहे हो, ठीक है। YouTube के एड से तो आप कभी जिंदगी में नहीं कमा सकते। अभी चैनल पे आई गेस 1.5 मिलियन व्यूज आए, ठीक है। तो लाइक दिस इज द व्यू काउंट ऑन द चैनल, राइट। बट हमारा रेवेन्यू बहुत कम है, 50-60 हजार रुपए का होगा एडसेंस से। मतलब मुझे सच एग्जैक्टली नंबर्स नहीं याद, बट एक बहुत कम रेवेन्यू, ठीक है। इतना रेवेन्यू तो हमारी कॉस्टिंग में हो गया होगा। यू हैव टू लाइक फोकस ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड, राइट। तो
रेवेन्यू आता है हमारा, हमने अब क्लास 12 के बच्चों के लिए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, ठीक है, हमें कई साल हो गए इस चीज में डील करते हुए, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरे पार्टनर फर्म्स हैं, ठीक है, स्टडी बस एजुकेशन, दे आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मैं उनके साथ ही 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से हमारा एक रेवेन्यू का सोर्स बनना चालू किया कि हम क्लास 12 के जो बच्चे, क्योंकि क्लास 12 की ऑडियंस हमारे पास होती है, ठीक है, हम उन्हें इंग्लिश फ्री में पढ़ाते हैं, तो फ्रॉम देयर दे ट्रस्ट अस। मतलब हमारी पता क्या है, हमारे पास मार्केटिंग के लिए लाखों करोड़ों तो थे नहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरह, ठीक है। हमारे पास मार्केटिंग के लिए क्या था कि हम बच्चों को कुछ सिखाए। हमने क्लास 12 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई थी में, तो क्या हुआ, जब उन्होंने मेरा पढ़ाया हुआ देखा, जब उन्होंने देखा कि यार प्रिंस जब पढ़ाते हैं ना, या जब वो किसी को बिठाते पढ़ाने के लिए, तो ही अश्योर्स कि वो क्या क्वालिटी डिलीवर करेंगे, राइट। तो उससे क्या हुआ, मेरे साथ 12th के बच्चे जुड़े। अब 12th के बच्चे स्कूल खत्म करते क्या करते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, राइट। तो फिर हमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि यार वो क्लास 12 के बच्चों को क्यों ना उनकी जो नीड होती है उसकी हम एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करें। पर वी ऑलवेज हैड अ ट्विस्ट इन दैट केस, ठीक है। हमारा ट्विस्ट क्या था, मैं ना जियो को बहुत ज्यादा इसमें मानता हूँ, ठीक है। जियो ने क्या किया, इतनी सुपीरियर क्वालिटी की चीज प्रोवाइड करी अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ठीक है। तो इस वजह से आज जियो है, या इतनी बड़ी कंपनी है। तो हमारी भी विजन यही है, जो कोचिंग कंपनीज लाइक कोचिंग सेंटर 20-25,000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोचिंग हम 5,500 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ सुपीरियर क्वालिटी, मच सुपीरियर कोचिंग टू दोज इंस्टीट्यूट, राइट। तो मतलब उनसे बहुत सुपीरियर क्वालिटी है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो वो चीज जो मॉडल है, ठीक है, वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा। पीपल आर ज्वाइनिंग, स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इट, स्टूडेंट्स आर लविंग इट। तो वहीं से हमारा मेजर डिबेट। अच्छा, I think that's pretty decent, that's pretty nice. और घर वालों को कैसा लगा जब SRCC ड्रॉप करने का प्लान लिया या IIM कैलकाटा ड्रॉप करने का प्लान किया? यार घर वाले तो जब IIM कैलकाटा ड्रॉप करने का प्लान लिया तो घर वाले तो पूरे फेवर में थे, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। हालांकि उस टाइम मैं कोई बहुत ज्यादा भी अर्न नहीं कर रहा था, ठीक है। जब मैंने IIM कैलकाटा ज्वाइन किया था, इट वाज एन एवरेज पैकेज जो एक SRCC या सुखदेव के बच्चे का लगता है, इट वाज नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट मेरे घर वाले भी बिजनेस, हम लाइक आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड एंड माय मॉम इज लाइक प्रीटी मच सपोर्टिव थ्रू आउट माय लाइक थ्रू ऑल द वेंचर्स आई डिड। तो मैं क्लास 12 में मैंने अपनी पहली कंपनी रन करी थी, ठीक है। उसके बाद मेरी 7-8 कंपनीज फेल हुई थी, उसके बाद यूट्यूब जाके चला, तो वो तब से अब तक बहुत सपोर्टिव थे, ठीक है। तो भाई जब IIM कैलकाटा को ड्रॉप करने की बात आई तो उनको पूरा विजन दिख रहा था यार। वो मेरे घर वाले ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने देखा कि हाँ यार ये विजन से काम कर रहा है, ये चीज बहुत बड़ा ग्रो करेगी एंड ही विल बी डूइंग बेटर। तो उन्होंने मेरे को IIM कैलकाटा ड्रॉप करने के लिए, तो इनफैक्ट वो इस फेवर में थे। एक बारी को मैं कंफ्यूज था कि मुझे करना है नहीं करना है, पर वो फेवर में थे कि करना। एंड जब SRCC की अगर मैं बात करूं तो SRCC का टाइम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नेगेटिव मेरे घर में, मेरे घर वाले एटलीस्ट, आसपास के जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। बट मुझे नहीं पता, मतलब वो ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। बट मेरे घर वाले वर लाइक कि यार मत कर, ठीक है। दे वर लाइक मत कर, कंटिन्यू कर ले। पर जब मैंने बिल्कुल पक्का डिसीजन दे दिया कि मैं तो करूंगा ही, तो उन्होंने फिर कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने दे ट्रस्टेड कि हाँ यार चल ये कुछ कर रहा है तो कुछ सोच के करना होगा। वो अगेंस्ट है, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि तू नहीं करेगा, या दे वर रूली अबाउट इट कि तू नहीं करेगा, अगर तुझे घर में रहना है तो तू नहीं करेगा। तो इट वाजंट लाइक दैट। मैंने फाइनल डिसीजन दे दिया, तो दे ट्रस्टेड मी, दे बिलीव्ड इन माय विजन। और मैं अपनी विजन बेचने में यार अच्छा हूँ, तो मैंने अपनी विजन भी घर वालों को बहुत अच्छे से बेच दी थी। तो दे वर लाइक कि चल ठीक है। राइट। नहीं यार, आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कुछ भी करते हैं, अगर वो ना हो तो कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, राइट यार। बट इसमें वही चीज है शिवांश की ना, पता है हर किसी की अपनी जर्नी होती है। मेरी जर्नी में मेरी डिफिकल्टी फाइनेंशियल थी, किसी की जर्नी में फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं होती, उनके पेरेंट्स की डिफिकल्टी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि यार आप अपनी डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम करते हो। ओवरकम सारी डिफिकल्टीज। कुछ स्पेसिफिक कुछ बोलना चाहोगे कि कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यार बाय ट्राइंग, बाय डूइंग थिंग्स। मतलब लोग कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी फॉर्मूला देने में विश्वास नहीं रखता। इनफैक्ट जब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स कभी बार मेरे से गुस्सा होते हैं, कभी बार खुंदक आती है उन्हें कि यार ये ढंग से हमें गाइड नहीं करते, प्रॉपरली पूरा गाइड नहीं करते। मैं
मैं वो लोगों में से हूँ जो कहता है कि ट्राई करो यार, हर चीज में तुम्हें गाइडेंस नहीं चाहिए और हर चीज में तुम्हें सिर्फ कहने से काम नहीं होता, ठीक है। लोग आज तुम यार एक रिक्शे वाले से भी पूछोगे ना गली में चलते हुए, वो भी कहेगा मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मेरे को विला में रहना है, मेरे को BMW चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कहता, ठीक है। The thing with people is, the problem with people is कि लोग फॉर्मूले के लिए लुकआउट कर रहे हैं कि यार कुछ फॉर्मूला हमें कोई बता दे। फॉर्मूला कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी है, आप कितनी भी बार फेल करो, आप इट्स ऑल अबाउट बस डूइंग। लाइक गैरी वेनरचक जो कहता है ना कि अपने थॉट्स कहने की बजाय करने पे ज्यादा बिलीव करो। आप करोगे तो आपको रास्ता दिखेगा। आप फेल होगे, आप 50 बार फेल होगे, 100 बार फेल होगे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, मैंने 12th क्लास में अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी थी, उसके बाद मेरे 7-8 कंपनीज भी फेल हुई, ठीक है। बट इवेंचुअली मैं हर कंपनी से सीखता गया, अपने हर वेंचर से सीखता गया, एंड इट्स ऑल अबाउट कि हाँ यार मैं ट्राई करता रहा तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप मिलता भी। There's this particular question अभी immediately आया आपके बोलते ही, but is it wise to trust our experience on trying? मतलब बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि आज दो चीजें हैं कि या तो मैं सपोजिटली एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो या तो मैं जाके एंटरप्रेन्योरशिप में फुल फ्लेज दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, या फिर आई टेक अ स्टेप बैक, probably give a year or two to myself, work with some of the best people out there, gain experience and then jump in the market. Yeah, see, you have to think for yourself. You need self awareness in life, ठीक है। जो चीज जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं क्या ये करूं, मैं भी खुद यही करने वाला था, ठीक है। If I personally think of myself, मैं भी यही सोच रहा था कि यार अपना सुखदेव से जब मैं ग्रेजुएट करूंगा ना, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, मैकेंजी, ऐसी किसी कंपनी में ट्राई करूंगा, किसी कंसल्टिंग फर्म में हो जाएगा, 2-3 साल वहां जॉब करके फिर मैं कंपनी एक अपनी कंपनी खोलूंगा, ठीक है। बट थिंग्स समटाइम्स डोंट वर्क आउट हाउ यू थिंक अबाउट इट, राइट। तो मेरा किसी कंसल्टिंग फर्म में हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर से ही मैं कोशिश कर रहा था यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब कर रहा था, ठीक है। मैं भी यही सोचता था कि यार 2-3 साल जॉब करके करूंगा, पर थिंग्स टुक ऑफ अर्ली फॉर मी, ठीक है। तो आप अब अगर आप ये प्लान सोच रहे हो कि मैं 2-3 साल किसी कंपनी के पास जॉब करके फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट प्लान, ठीक है। बट अगर आप अभी अपनी ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, और आपके दिमाग में एक आइडिया है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू, ट्राई कर लो ना। अगर नहीं चला तो फिर तब कंपनी में चले जाना। तो दैट इज द थिंग। नाइस, आई थिंक प्रसाद योर क्वेश्चन इज आंसर्ड, राइट। सो प्रिंस, अब बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन व्यूअर्स हैं, दुनिया इन्फ्लुएंसर कह रही है, तो ऑफ कोर्स ही बात है बहुत सारा ट्रांजिशन भी आया होगा लाइफ में कि एक टाइम पे शायद 4 लोग जो बात नहीं कर रहे, वो 4 लोग बोल रहे हैं कि यार हमारे पॉडकास्ट पे आ जाओ, हमसे बात कर दो, हमारे ऑडियंस को कुछ कर दो। वो ट्रांजिशन कैसा है एंड हाउ आर यू एक्चुअली, मतलब बहुत मजा आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में अभी? जी यार देखो, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, ठीक है। मतलब मेरे लिए nothing has changed, ठीक है। मेरे लिए apart from the financial gains I have gained, right, मैं एक लाइफ अपनी फाइनेंशियली बेटर लीड कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। मतलब there was a time where we didn't have money to buy clothes, right, so I was from that background, right, so I'm doing good financial, ठीक है। That is the change। उसके अलावा अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज बोलूँ, मेरे फ्रेंड्स को लेके, मेरे फ्रेंड्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट एज बिफोर। मैं किसी को कोई चेंज रियलाइज कराने की भी कोशिश नहीं करता। इनफैक्ट मैं इस चीज को कम से कम रखने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं यूट्यूबर हूँ, ये है वो है, उस चीज को मिनिमम से मिनिमम रखता हूँ ताकि मेरी पर्सनल लाइफ में या मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे पर्सनल रिलेशन में कोई भी इस तरीके की चीजें बदलाव ना, ठीक है। इनफैक्ट तुम इंस्टाग्राम पे भी देखो यार, मैंने इंस्टाग्राम बहुत लेट स्टार्ट किया, अपने अकाउंट पे बहुत कम एक्टिव रहा हूँ मैं, अब जाके मेरे 700 फॉलोअर्स हुए हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो जो यूट्यूबर होते हैं 75,000 70-80,000 सब्सक्राइबर होता है, उनके 7-8,000 सब फॉलोअर्स हैं, ठीक है। मैंने उस चीज को कभी प्रमोट नहीं किया, अब कर रहा हूँ क्योंकि बिजनेस, अगेन बिजनेस। बट द थिंग इज कि हाँ, पर्सनली कोई चेंज नहीं हुआ है। रही बात मेरे को लोगों की अप्रोच करने की, पॉडकास्ट वगैरह के लिए, इंटरव्यूज के लिए, हाँ थोड़े बहुत इंटरव्यूज बढ़ गए हैं, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट यार, कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों से अपनी स्टोरी शेयर कर पा रहा हूँ, या फिर
like people are interested in my story, and that's a big surprise for me as well that people are interested in my story. ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें I discuss my life story, तो it got I guess अभी 85,000 views उस पे, and when I was uploading it I was like यार 5-10,000 views भी हो गए तो बड़ी बात है कि people are interested, ठीक है, but it blew up so much कि दूसरे दिन में ही it was like at 70,000-80,000, ठीक है, तो yeah, people are trying, like people are interested in my story. I'm really grateful for that and I'm really surprised about that, but मेरे में कोई change नहीं आया यार, I don't feel any change, बस ये है कि हाँ लोग मेरे बारे में interest ले रहे हैं तो I feel just grateful about it. बट अगेन यार ये लाइफ के फेजेस हैं, ठीक है, एक बुरा फेज भी था मेरी लाइफ में, आज एक अच्छा फेज भी है, ठीक है, बट आई बिलीव कि शायद फ्यूचर में दोबारा एक बुरा फेज आ सकता है, ठीक है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट, यू कैन नॉट से कि मैं कमिट नहीं कर सकता कि यार आज मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा अच्छा फेस चल रहा है तो ये हमेशा रहेगा, बुरा भी आ सकता है, ठीक है, बट द थिंग इज कि यू शुडंट लाइक टेक इट ओवर योर हेड ना, कि अगर आप अच्छे भी हो, अगर आपका अच्छा भी फेस चल रहा है तो भी आपके वो सर पे ना आए, और अगर आपकी लाइफ में बुरा भी फेस चल रहा है तो भी वो आपके सर पे ना आए, यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ, यू इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस यार, कि तुम खुश हो, ठीक है, बुरा फेज आ रहा है तो भी और अच्छा फेज आ रहा है तो भी तुम अपनी खुशी मेंटेन करके रखो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. I think this is something, Prince, that is common with every friend of mine that I've still till now brought on these webinars. Humility is the most important thing. अगर ट्रांजिशन कुछ भी आता है पैसे को लेके, फेम को लेके, having that sort of humility and having that sort of objective, what I am doing is to add value to other people out there. This is a constant thing that I've been seeing. राइट, ट्रू यार, अगर वो चीज तुम्हारे सर पे आ गई और कल को वो तुमसे चली गई तो तुम बहुत बुरी तरह डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है, बट हाँ एक चेंज मैं जरूर कहूंगा डेफिनेटली आया है, जो यार अभी तो मैंने जो चेंजेस बोले हैं वो काफी ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे बारे में बड़ा मतलब अच्छा सा दिख रहा हूँ मैं, बट एक मैं बुरा चेंज बताता हूँ डेफिनेटली मेरे बारे में जो आया है मेरे अंदर, कि जो पहले लोग मेरे क्रिटिक्स थे ना, अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलता था, मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोलता था, ठीक है, तो वो उसके बारे में सोचता था, उसके बारे में दिल पे ले लेता था, पर अब मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, दैट इज द ट्रुथ यार, अब मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव इन द सेंस क्रिटिसिज्म को लेके नहीं, ठीक है, क्रिटिसिज्म लाइक बैकबोन है आपकी इंप्रूवमेंट की, ठीक है, पर अगर कोई बेफालतू में कुछ नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, या फिर कोई बेफालतू में ऐसे कह रहा है कि कुछ नहीं होगा इससे, ये वो चीजें जब कोई बोलता है तो अब मैं कहता हूँ भाई इतना मैंने कर लिया है, ठीक है, अब ये चीज मैंने करी अपनी लाइफ में, ठीक है, तो मुझे तेरे उसकी जरूरत नहीं है, तो हाँ ये चीज मेरे अंदर अब आई है जो पहले नहीं थी, तो हाँ ये आ गई है कहीं ना कहीं. हाँ ईगो, मैं बिल्कुल यार, मैं देखो मैं भी एक यंगस्टर हूँ, 24 टाइम, राइट, तो ये चीजें भाई आती हैं, ठीक है, लाइफ का पार्ट है. ईगो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जो मेरे हेटर्स थे या जो मेरे को बुरा कहते थे या जो मेरे अगेंस्ट थे उनके खिलाफ तो डेफिनेटली आई है, बट हाँ मेरे जो क्लोज वाले हैं उनसे मेरा पूछिए. राइट, नहीं यार बिल्कुल सही बात है. सो लेट्स टॉक अ बिट अबाउट YouTube, कि YouTube में आज अगर किसी इंसान को YouTube अपना करियर बनाना हो, क्योंकि बाहर से तो शायद वो दुनिया बहुत अच्छी लगती है कि वीडियो बना के पैसा कमाने को मिल रहा है, इससे ऊपर चाहिए क्या, राइट, तो हार्डशिप्स के बारे में तो हमने ठीक है काफी सारी बात कर भी ली, बट एनी टिप्स फॉर समवन हु वांट टू स्केल देयर YouTube अप, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर फेलियर्स दैट दीस पीपल कैन इंटीग्रेट इन देयर लाइफ? यार अगर मैं स्पेसिफिकली YouTube की बात करूं, ठीक है, अगर स्पेसिफिकली हम YouTube की बात कर रहे हैं तो YouTube के बारे में यार एक तो सबसे पहली चीज जो चीज मैंने आपकी नॉर्मल लाइफ के बारे में बोली है वो भी YouTube के बारे में ही बोलूंगा कि गो फॉर इट, स्टार्ट कर दो, इतना बुरा कंटेंट बन रहा है डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है, आप एक बार स्टार्ट करो उस पहिए को घुमाना, ठीक है. उसके अलावा जो मैंने गलती करी थी, जो 2 गलतियां मैं तुम्हें कहूंगा ना करने को, एक तो ब्रांडिंग पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, मतलब तुम ये मानो यार 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब मेरे क्रॉस हुए थे, शायद 1 लाख या 90,000 सब्सक्राइबर्स तक भी यूट्यूब पे जो मेरा आइकॉन था ना चैनल का, वो एक चांद की फोटो थी जो मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट कर, ठीक है, तो और ना ही मैं अपनी ब्रांडिंग कर रहा था ना मैं चैनल की ब्रांडिंग कर रहा था, तो ये चीज काफी गलत थी. अगर इंस्टाग्राम पे ना आना, तो मैं एक तो कहूंगा कि भाई ब्रांडिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना. दूसरी चीज ऑक्सिलरीज पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सिलरीज मतलब कि देखो यूट्यूब पे एक तो होता है कंटेंट, अच्छा कंटेंट, ठीक है,
मैं सोचता था सिर्फ कंटेंट से काम बन जाएगा, सिर्फ कंटेंट से काम बन जाएगा, पर सिर्फ कंटेंट के अलावा अच्छे थंबनेल होना, अच्छे टाइटल होना, अच्छे टैग्स होना, ठीक है, जो आपकी वीडियो अच्छे कंटेंट के अराउंड भी दूसरी चीजें आती हैं, उन पे भी ध्यान देना, वो चीज आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें मैं डेफिनेटली कहूंगा जो यूट्यूब स्टार्ट करने वाला है, वो ये 2 चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान दे, ब्रांडिंग पे और अपना ऑक्सिलरीज जो साइड चीजें सिर्फ एक क्वालिटी कंटेंट के अलावा। पर मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा यार, यूट्यूब पे ना मेरे ख्याल से अगर आप यूट्यूब पे स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो मैं ये चीज कहूंगा कि अगर आप जो भी चीज करना चाहते हो, आपको लगता है कि वो अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, और अगर आप वो लगता है आपको टिकटॉक पे अकोमोडेट कर सकते हो, तो यूट्यूब से ज्यादा इस टाइम टिकटॉक को आप प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि टिकटॉक पे अभी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, आपकी यूट्यूब पे इतनी मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ है, पर टिकटॉक पे आजकल बहुत जबरदस्त ऑर्गेनिक। ठीक है, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस एंड प्रोबब्ली समथिंग फॉर माय टीम एज वेल, जो टीम बैठ के सुन रही है गाइस, हम ये सारी वीडियोस टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली इसे सोचना चाहिए। डेफिनेटली एडुटॉक, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, टिकटॉक जब मैंने इंस्टॉल किया ना, मैंने कहा एक बार चलो देखते तो यार क्या मेरे ख्याल से हम सबने अपनी एक बारी तो, जो जिन लोगों को फुद्दू लगता भी है टिकटॉक, ठीक है, उन्होंने भी मेरे ख्याल से, तुमने डाला एक बारी टिकटॉक? नहीं, मैंने तो नहीं डाला यार। तो हमारी यार देखो, गैरी वेनरचक ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है जो मैंने रियलाइज करी है, ठीक है, ये हम स्पेशली हम यंगस्टर्स, इनफैक्ट ये चीज इंपॉर्टेंट पता है, जो अभी 20 या 20 ईयर से ऊपर है, हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज को रियलाइज करना कि हम वो गलती ना करें जो हमारी बड़ी जनरेशन ने हमेशा करी है। वो गलती क्या है कि यार मैंने तो ये चीज यूज करी है, ये चीज कूल है, उसके अलावा जो सब आ रहा है वो बेकार है, ठीक है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करना, हमारे टाइम में इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, वो हमारे लिए कूल था, हम उस पर आ गए, पर उस टाइम जब ये प्लेटफॉर्म्स आए थे ना, हमारे एल्डर्स ने क्या कहा था, अरे तुम्हें टाइम वेस्ट कर, और वो चीजें बड़ी बन गई, वो चीजें चल गई। आज हम जब 20s प्लस हो चुके हैं ना, हम लोग ये चीज टिकटॉक के साथ कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये फुद्दू प्लेटफॉर्म है, पर भाई 20 से बिलो वाले जनरेशन एक्स या जेड कहते हैं, कुछ कहते हैं, मतलब हाँ जेड कहते हैं ना, तो जनरेशन जेड में भाई वो बहुत चल रही है, और अगर तुम इस पार्टी में लेट हो तो कोई ना कोई इस पार्टी को जाके एंजॉय करने वाला है। टिकटॉक इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और हमें एज 20 ईयर्स ओल्ड, अब हम थोड़े से बड़े तो हो ही गए हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमें उस माइंडसेट को नहीं बिठाना चाहिए कि यार ये बेकार प्लेटफॉर्म है, या कोई भी XYZ नई चीज आ रही है वो बेकार है। मैंने टिकटॉक एक दिन इंस्टॉल किया एंड इट लिटरली ब्लू माय माइंड यार। 30 सेकंड में आपको गैरी वेनरचक डिजिटल प्रतीक जैसा बंदा आ रहा है, और तुम्हें 30 से 60 सेकंड में यूजफुल थॉट तुम्हें देके जा रहा है, इससे वैल्यूएबल चीज तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती। तो भाई इवन जब एडुटॉक चालू हो रहा था, करीब आई थिंक 2 साल 1.5 साल पुरानी बात है यार, पता नहीं, जब भी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। सो उनकी जो मेन एजेंसी है जो टिकटॉक का पूरा संभाल रही है इंडिया में, उन्होंने हमें रीच आउट किया कि शिवांश हमें 50 लोग चाहिए, 10 अलग अलग कैटेगरीज में, 5 अलग अलग कैटेगरीज में, एंड वी विल मेक देम इन्फ्लुएंसर्स। हम उन्हें ऑर्गेनिकली लाखों लोगों की रीच लाके देंगे, गारंटीड, और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें उल्टा पैसे मिलेंगे। We missed upon that opportunity, यही सोच के कि यार टिकटॉक पे कौन जाएगा, मतलब आज मैं सोचता हूँ। तो अभी है वो अपॉर्चुनिटी, अगर है तो आई एम ओपन फॉर दैट। यार वो बहुत पहले जा चुकी है, मतलब हमने बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस करी है अपनी यंग इंजन। यार ये चीज ना, मतलब मुझे बाहर के लोगों का नहीं पता, पर ये इंडियन मेंटालिटी तो हम लोगों में बहुत ज्यादा भरी हुई है कि हम जो नेक्स्ट चीज आती है ना, हम चेंज को, यार बल्कि इंडियन भी नहीं यार, गैरी वेनरचक कुछ चीज को कहता रहता है, तो इसका मतलब ये वर्ल्ड वाइड है। हम लोगों को आदत है कि यार हम लोग चेंज को नहीं चेंज, हम जब यंग ना, जब हम 16-17 में होते हैं, हमें हर चीज नई चीज एक्साइट करती है, ठीक है, हम हर चीज नई देखना पसंद करते हैं, पर एज वी ग्रो ओल्डर हमें चेंज हम पसंद नहीं कर पाते, ठीक है, और हम उस एज में शायद 20 प्लस क्रॉस करते हैं, हम उस एज में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज सबसे बड़ा किलर है भाई। गैरी वेनरचक को देखो, डिजिटल प्रतीक को देखो यार, 3 से 4 महीने में बंदे के 1.3 या 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं यार टिकटॉक पे, 3-4 महीने में। इससे बड़ी चीज मेरे ख्याल से तो हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, हम ना एक टॉपिक के बारे में और बात करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ये चीज भी काफी सारे स्पीकर्स हमारे आके यहाँ पे बात करते हैं। इवन यू मेंशन कि आपको बेचना बहुत अच्छा आता था, जिसकी वजह से आप अपने विजन को, अपने आइडिया को अपने पेरेंट्स को बेच पाए। हाउ इम्पोर्टेंट इन सेल्स इन देयर लाइफ, और सेल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, जिन चीजों पे शायद हम में से कोई सोचता नहीं, ध्यान नहीं देता, ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। यार देखो, मैं इम्पोर्टेंट कहूंगा एक कंपनी के लिए, ठीक है, एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, पर एक इंडिविजुअल के लिए क्या इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई इंडिविजुअल को अगर बेचना नहीं आता या बोलना नहीं आता तो क्या वो एक बिजनेस खड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता, या वो इतना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू लव व्हाट यू डू, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन व्हाट यू लव, ठीक है। तुम जब बहुत अच्छा करोगे, जब तुम्हें बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनाओगे, जब तुम वो चीज कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, तो चाहे तुम्हारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, तुम इवेंचुअली शायद एक बंदे से टकराओगे जो कम्युनिकेशन में अच्छा है, जो तुम्हारी विजन को समझता है, जो तुम्हारी चीज में इंटरेस्ट होल्ड करता है। तो क्या पता आपकी कंपनी का कम्युनिकेशन का बंदा, सेलिंग का बंदा वो बच जाए। आपकी कंपनी के लिए, एक टीम के लिए एक कम्युनिकेटर, एक सेलर बहुत जरूरी है, ठीक है। पर एज एन इंडिविजुअल आपका स्किल कोई भी हो सकता है। एज एन इंडिविजुअल आपको बस अपनी चीज पे फोकस करने की जरूरत है, और इवेंचुअली आपको ऐसे लोग अपने आप मिलेंगे जो आपको खुद कंप्लीट करें। बट प्रिंस, मतलब आई हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजी ऑन दिस, क्योंकि आई एम अ सेल्समैन। व्हाट आई हैव सीन, अगर दो चीजें रखते हैं, पहली चीज इंसान को जॉब करनी है या जिंदगी में जॉब ही करनी है, तो लीडरशिप लेने के लिए सिर्फ काम अच्छा करने से नहीं आएगा। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू बी अ लीडर, you have to be very good at communication and very good at influencing people. That starts with communication. Even for a business, before you can find some good set of people, you need to know how do you sell your vision to that limited number of people. Even वो communicator को onboard करने के लिए भी हमें communication skills होना, हमारे mentor को onboard करना, पहला product sell करना. I think that holds a very important thing that people fail to realize in their life. Yeah, that's true. In fact, that's a new perspective. Like, yeah, definitely that's true, and definitely I would agree to that कि हाँ यार, अगर एक कंपनी में देखो यार, मैं कभी कंपनी में मैंने जॉब नहीं करी है, ठीक है, एंड लाइक मैं जॉब वालों से ज्यादा, मेरा मतलब बीइंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। बट या दैट्स ट्रू कि अगर एक कंपनी में आप सिर्फ काम कर रहे हो एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट योर इन्फ्लुएंस, देन यू वोंट बी एबल टू बिकम अ लीडर। दैट्स ट्रू, एंड दैट्स अ thing I would really agree upon. Right. I particularly think about this a lot, and almost everyone who's come on this platform with us, even for the offline seminars and the online webinars, agrees on that. And that is why even we are planning to launch particularly something जहाँ पे हम लोगों को ये चीजें सिखा सके, क्योंकि मार्केट में कोई ये सिखा नहीं रहा है। मतलब सब कुछ है मार्केट में, no one is talking about sales or communication skills and everything like that. एंड तो फिर मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप ऐसा कुछ लॉन्च कर रहे हो तो टिकटॉक पे भी जरूर करना। तो दैट्स अ थिंग, मतलब शायद मेरे ख्याल से मैंने टिकटॉक का काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मैंने सेल कर दिया टिकटॉक को काफी ज्यादा यहाँ पे। तो ये चीज अगेन, ये चीज अगली बार हम उनसे पैसे भी ले लेंगे, हम कहेंगे हम यहाँ पे टिकटॉक का प्रमोशन करेंगे, पैसे दे दो। बिल्कुल यार, और मेरे को मत भूलना उस टाइम। Definitely man, definitely. So there's this question in Q&A. This was received when we started the session. How did you convince the people around you to let you follow this path? Were you big enough at that time that you could convince them? यार जब आप किसी चीज को ज्यादा पसंद करते हो ना, और जब आपकी बात पे वेट होता है, ठीक है, अब जैसे मैंने देखो, अब कोई बंदा आके, जब आप किसी चीज में बहुत बिलीव करते हो ना, बहुत ज्यादा आपका किसी चीज को लेकर स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, तो आप जब वो बात बोलते हो उससे एक एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी जो है अपने आप लोगों को कन्विंस कर देती है। जैसे मैंने टिकटॉक का कितनी बार डिस्कशन किया, ठीक है, मेरे ख्याल से कितने लोगों ने तुम्हें कहा होगा टिकटॉक, मतलब कितने लोगों ने तुम्हें टिकटॉक के ऐड भी देखे होंगे, कन्विंस करने की कोशिश करी होगी। बट मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यहाँ पे एक दो बंदों को तो इस चीज में बिलीव में लाई दिया होगा, कन्विंस तो कर ही दिया होगा टिकटॉक वो आज जाके यूज करें, ठीक है। मतलब 2-3 लोग तो डाउनलोड करके आप देख लेंगे कि यार क्या कंटेंट है एजुकेशनल, ठीक है। तो when you believe in something, you are able to convince people कि हाँ यार that is the thing, right? अगर तुम्हें बहुत strongly believe है, आज मुझे बहुत strongly believe है, अगर मैं literally free होता इस टाइम, या अगर जब भी मैं फ्री हूँगा, मैं definitely TikTok पे काम करूँगा, and I believe in that. That's why like some people, when I tell them about it, they get they get convinced about it. So it's just about that you believe in what you are. Yeah, what do you think? The next question is, did you enjoy your time pursuing computer science, and why didn't you take up anything in technology field after graduating? Because since you mentioned you always had this passion for computer science, so why not? यार देखो, मैं इट्स ट्रू कि मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा बड़े रिस्क लिए, और इनफैक्ट मैं नहीं कहूँगा हर किसी को इतने बड़े रिस्क पे खेलना, ठीक है। पर हाँ, कभी कभार क्या होता है, आपको कोई चीज लगती है, आपका पैशन है, ठीक है, आपको लगता है कोई चीज आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, पर आप जब घुसते हो उस चीज में, जब आप एक्चुअली उस चीज से गुजरते हो, ठीक है, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी,
ठीक है। बट द थिंग इज कि यू कीप डूइंग व्हाट यू लव, यू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। मतलब अब मैं देखो कंप्यूटर साइंस में घुसा मैं, ठीक है, मुझे घुस के रियलाइज हुआ कि यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितनी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पर उस टाइम अब मेरे को नया पैशन मिल गया, मेरे को टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद आने लग गई, मैं टीचिंग बहुत ज्यादा करने लग गया, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के साथ साथ टीचिंग भी एक ऐसी चीज है जो मैं बचपन से करता आ रहा था। मतलब पहले हालांकि मैं कोई अच्छा स्कोरर तो था नहीं, ठीक है। अब मैं था फेल आदमी, मतलब मेरे 50% आ रही हैं, ठीक है। पर एक 50% वाला, अगर कोई बच्चा फेल होने वाला, एक आपका दोस्त आपसे कहे कि यार तू 50% तो ला रहे, तू 48-92% ले आता है, मैं तो पास भी नहीं हो पाता कभी, उसको पढ़ा के मैं पास करा पा रहा हूँ, तो उसके लिए वो चीज बड़ी है, ठीक है। तो टीचिंग भी एक पैशन था बचपन से, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने सुखदेव ज्वाइन करके पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा यार ये चीज इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कहा अब ये पैशन है, बन गया है भाई, ये चीज पैशन है अपना, तो इसको भी ट्राई करते हैं, ठीक है। पर जब वो चीज मैंने स्टार्ट करी, तो उसके साथ वो वाली चीज नहीं हुई जो मेरे साथ यहाँ पे हुई कि यार कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करके इतना ज्यादा मन नहीं लगा, इतना ज्यादा मैंने उसको एक्सटेंसिवली नहीं किया जितना मैं सोच रहा था। Right. I think that perfectly makes sense. The next question is around YouTube. Yash Agarwal has asked this question. How do your content boost up on YouTube? मतलब ठीक है, आपने content अच्छा बनाया, organically काफी grow हुआ, but there would be some sort of instances, some things that you must have tried. किसी ने आपको shout out दिया होगा, कुछ particularly ads चलाए होंगे, या कुछ तो किया होगा कहीं ना कहीं अलग अलग phase में, जहाँ पे immediate boost है। यार मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ मतलब ये चीज मैं सोच रहा था, तो मैं बताऊंगा, बोलना चाह रहा था मैं, बट हमारा कभी इस पे आया नहीं टॉपिक। मैं अब एक चीज बताता हूँ, मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था, और जब तक मैं 5000 सब्सक्राइबर्स के अराउंड पहुंचा नहीं था ना, तब तक मेरी फैमिली तक को नहीं पता मैं YouTube का, ठीक है। मतलब लोग क्या करते हैं, मुझे गलती लगती है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे ये चीज नहीं पसंद है। कोई करता है तो इट्स देयर फॉल्ट, ठीक है, बट मुझे ये चीज पर्सनली नहीं पसंद कि जब आप अपना कंटेंट बनाओ और आप अपने दोस्तों में शेयर करने में लगे हुए, और आप अपने दोस्तों से कह रहे हो कि भाई इसको शेयर कर, इसको फॉरवर्ड कर, इसको अपना स्टेटस कर। यार अगर आपका कंटेंट अच्छा है, लोग खुद से शेयर करें, तो आपका कंटेंट पावरफुल है। मैं इतना ज्यादा शाय था, ठीक है, मैं इस चीज को लेके इतना ज्यादा घबरा रहा था, और मतलब अगेन मैंने तुम्हें एक चीज अपनी ये चीज बताई कि मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे कहने से कोई मेरा कंटेंट शेयर करे, या फिर मैं किसी से कह के करवाऊं, ठीक है, वो चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं 5000 सब्सक्राइबर्स तक, तो मेरे घर पे मैं ये भी नहीं पता था कि मेरे घर वालों को भी मैं ऊपर वाले रूम में बैठ के वीडियोस बनाऊं, या मेरे किसी भी आसपास किसी दोस्त को नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है। तो इट वाज ऑल ऑर्गेनिक, ठीक है। मैं बस वीडियोस बना के डालता था, ठीक है। जिसको पसंद, लोगों को कुछ को पसंद आई, उन्होंने कमेंट किए, मेरे को लगा कि हाँ यार अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, मैं और कंटेंट बनाता गया। जब मैं कंटेंट बना रहा था, मुझे एक चीज तसल्ली, मैं पूरी तसल्ली से बनाता था, मुझे बस खुद सेटिस्फेक्शन होता था कि यार मैंने ये वीडियो बनाई है ना, ये एक्चुअल में जो बंदा ढंग से देख लेगा ना, उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उस तसल्ली से बनाता था, तो यार बस उस चीज से अपने आप चैनल ग्रो किया, ठीक है, अपने आप ऑर्गेनिक रीच हुई। मेरे को कोई शाउट आउट की अगर मैं बात बोलूं, मैं आज मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं लास्ट 1 मंथ में दूसरे यूट्यूबर से पर्सनली टच में आना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। मैं अभी तक एक भी यूट्यूबर से कनेक्टेड नहीं था। और मैं एक चीज और मजे की बात बताऊं, मैं जितना दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में जान रहा हूँ ना, मुझे यही चीज देखने को मिल रही है कि ये इंडस्ट्री बहुत प्रिटेंशियस है, ठीक है। लोग बस जो यूट्यूबर्स है वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ, ठीक है। पर यार हर किसी में कमियां हैं, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा लोगों से टच में नहीं रहा यूट्यूब इंडस्ट्री में, और अब मैं आ रहा हूँ तो मेरे को कोई ऐसा खास लग भी रहा इंटरेस्टिंग लोगों से आना टच में। तो यार शाउट आउट कोई सीन नहीं था मेरा, बस मेन सीन ये था भाई, मेरे को पसंद था, मैं कंटेंट बनाता गया, मैं ग्रो कर गया, ठीक है। कोई करता है तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये चीज काम कर जाती है यार, पर मेरे लिए काम करी नहीं, और मेरा मन भी नहीं था कि मैं इस तरीके से करूँ। राइट नहीं, आई थिंक सारी इंडस्ट्रीज में ही ऐसा है, काफी ज्यादा प्रिटेंशियस लोग हैं, दिखावा बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, बहुत ही ट्रू है यार, ट्रू। हर जगह ही ऐसा है, स्पेशली टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स चल ही रहा है, आपको पता ही है क्या है। बिल्कुल यार। So another question about YouTube. What are the different sources of income for a YouTuber? क्या तरीके होते हैं पैसे कमाने के? यार YouTube से आपका कमाने का अच्छे पैसे कमाने का एक ही तरीका है कि आपका इन्फ्लुएंस, ठीक है। आपका इन्फ्लुएंस इन द सेंस आप उससे नहीं पैसे कमा सकते, आप YouTube के ऐड से आप कभी पैसे नहीं कमा सकते ढंग के,
ठीक है, या इतने पैसे कमा लो कि आप सस्टेन कर पाओ, ऐसा कर लो, ठीक है। यूट्यूब से पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हो। वो कॉमेडी के तौर पे भी हो सकता है, वो एजुकेशन के तौर पे भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है जिससे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐड कर रहे हो सोसाइटी में, ठीक है। तो जब आप वो एडिशन करते हो, मैंने यूट्यूब पे कई साल फ्री में पढ़ाया, मेरे आसपास घर वाले, मेरे रिलेटिव्स पूछते थे फ्री में क्यों कर रहा है भाई, फायदा ही क्या है ये चीज फ्री में करने का, ठीक है। तो द थिंग इज कि यार जब फ्री में मैंने करा, ठीक है, तो मेरा एक इन्फ्लुएंस बिल्ड हुआ। इन्फ्लुएंस मैं इन्फ्लुएंस इसको कहना कम पसंद करता हूँ, मैं इसको ट्रस्ट कहना पसंद करता हूँ, ठीक है, कि मेरे पे लोगों का ट्रस्ट, मतलब लोगों का मेरे पे ट्रस्ट बना कि यार ये बंदा जो है अच्छा काम करता है, ठीक है, इसके काम में एक स्ट्रेंथ है, इसके काम में एक वो चीज है कि हाँ यार एक एश्योरिटी है कि हाँ ये जो बंदा काम करेगा, ये जो बंदा चीज देगा वो अच्छी होगी ही होगी, ठीक है। तो जब आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक है, तो उस ट्रस्ट के बेसिस पे आप उन्हें चीजें सेल कर पाते हो। पर ये चीज सेलिंग जो है, मैं इसको बिल्कुल क्लियरली कहना चाहूंगा, ये सेलिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे को एक ब्रांड का ऑफर आया था, अगेन ये स्टीव जॉब्स का ये फोटो है, मेरे को ब्रांड ने कहा था कि यार ये पोस्टर हटा दो और हमारे ब्रांड का पोस्टर लगा लो और हमसे 2-3 लाख रुपए ले लेना, ठीक है। मैंने क्लियर मना कर दिया, क्यों? क्योंकि यार मेरे अपने फॉलोअर्स के, जब वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट का मतलब क्या है कि उनको ये ट्रस्ट की डेफिनेशन क्या है कि यार कोई सामने वाला बंदा पे आप ट्रस्ट करते हो, उसका मतलब ये है कि यार ये इंसान मेरे साथ गलत नहीं करेगा अपने पर्सनल गेन के लिए। अब जब मेरी ऑडियंस मुझे ट्रस्ट करती है कि यार ये बंदा हमारे साथ गलत नहीं करेगा अपने पर्सनल गेन के लिए, तो मैं एक 2-3 लाख रुपए के लिए मैं किसी ऐसे ब्रांड का पोस्टर लगा लूं जिसके बारे में मैं ढंग से नहीं जानता, जिसका मुझे नहीं पता कि वो मेरे फॉलोअर्स के साथ या मेरे जो भी ऑडियंस है उनके साथ जाके क्या करेगी फ्यूचर में। तो अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो उनका मेरे पे ट्रस्ट हटेगा, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी, पर आप एज ए यूट्यूबर, एज कुछ भी आप काम कर रहे हो आज की डेट में सोशल मीडिया पे, तो आपकी इनकम उस ट्रस्ट से आएगी, उस भरोसे से आएगी जो आप अपनी ऑडियंस से गेन करोगे। I think that perfectly makes sense. Even हमारे साथ काफी बार हो चुका है, जब से हमने वेबिनार शुरू करे हैं, कंपनीज वांट्स टू पे अस, वो चाहती है हम आके अपना सामान बेचने लग जाए यहाँ पे बस, बट जब तक हम सामने वाले को जानते ही नहीं है हम उसका नहीं कराते। आई पर्सनली नो यू, सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि यहाँ पे अगर कुछ सेल भी होता है आपकी तरफ से, आप कहते हो कि मेरा ये कोर्स है, तो मुझे पता है कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं है। अगर हम रैंडमली किसी को भी ले आएंगे, बहुत लोग हमें कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं या हम किसी को जानते हैं उसको प्लेटफॉर्म पे बुला लेते हैं, बट वी हैव टू कीप अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल नीड टू हैव दैट ट्रस्ट इन आवर कम्युनिटी। So last 2 questions. The first thing about, I think already आपने काफी डिस्कस कर दी है. This particular guy is a DJ and he wants to pursue that particular passion. अब यहाँ पे हम बहुत सारा वैल्यू, जैसे एजुकेशन में तो हम बहुत सारा वैल्यू कह सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को कि हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम शायद अपने पेरेंट्स को वो भी नहीं दिखा सकते. So he says his parents are stubborn. How do you convince them that this is something that I can do? See, it all depends कि अभी जो है, क्या नाम है उनका, कुणाल का जो दीदी, कुणाल, ठीक है, कुणाल। See, it all depends कि देखो आप अभी अगर कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज में होने की सबसे, क्या कुणाल कॉलेज में हो, एक बार ये कंफर्म करते हैं। He's in college ना, तो यार कॉलेज में होने की सेकंड ईयर, फर्स्ट या सेकंड ईयर, फर्स्ट और सेकंड ईयर, तो यार कॉलेज में होने की सबसे बड़ी ब्यूटी है यार, अपने घर वालों को आप कन्विंस करने में लगी क्यों रहे हो, ठीक है। आपको कन्विंस करना ही नहीं है, आपके पास दिन है, ठीक है, दिन में आप वो करो जो घर वाले आपसे करना चाहते हैं। आप अपना कॉलेज अटेंड करो, आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आप कुछ ऐसा करो जो आप श्योर हो कि हाँ मेरा करियर अच्छा चल रहा है। रात है ना यार, अगर आप किसी चीज को पैशनेट हो लेके, मैंने YouTube भी जब स्टार्ट किया था, मैं रात को काम करता था। मैं अपनी सुखदेव में, मैं तुम्हें बताता हूँ, 5th सेमेस्टर में आई वाज द 3rd रैंक होल्डर ऑफ द क्लास। आई गेन 9 CGPA, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर, एंड इन दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर माय YouTube चैनल लाइक ग्रू अ लॉट, ठीक है। तो यार आपको जरूरी थोड़ी ना आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, वो तो यही तो कह रहे हैं दिन में पढ़ाई करो, रात को आप कुछ भी कर रहे हो। आप अभी भी रात को क्या करते हो, आप उसको छोड़ के आप उस पे ध्यान दो, अपने डीजे पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगेन दैट इज द थिंग ना, कि अगर आप कोई चीज को लेके पैशनेट हो, आप कितनी भी प्रॉब्लम से निकलो यार। मैंने YouTube जब मैंने बोला, मैंने स्टार्ट किया था, आई डिडंट हैव एयर कंडीशनर, आई डिडंट हैव फैन, आई वाज वर्किंग एट 40 डिग्री। क्यों वर्क कर रहा था? क्योंकि मुझे उस चीज पे पैशन था, मुझे पसंद थी वो चीज।
ठीक है, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। तो भाई दिन में आप अपना जो भी घर वाले चाह रहे वो करो, रात को वो चीज कर लो, ठीक है। एंड अगेन अगर हाँ, और एक इस पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एज अ डीजे, और मैं देखता हूँ आर्टिस्ट आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहते हैं यार हम आर्टिस्ट अच्छे हैं, हम आर्ट अच्छी बनाते हैं, ठीक है, या हम म्यूजिशियन अच्छे हैं, हम म्यूजिक अच्छा बनाते हैं, ठीक है। पर आप सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता यार, विजन भी होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला, ठीक है। मैं टीचिंग कर रहा था उस टाइम, ठीक है, मैं बहुत अच्छा टीचर बन गया था, ठीक है, बच्चे मेरे, मैं अच्छा कमा भी रहा था, मैंने सब कुछ छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो विजन थी, ठीक है, मेरे को पता था वो फ्यूचर है, ठीक है। सिर्फ आपकी कला से आज की डेट में काम नहीं बनता, आपको विजन लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डीजे हो, ठीक है, आप देखो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या 5 साल बाद बड़ी चीज होगी। अगेन मैं इसमें दोबारा टिकटॉक को सॉन्ग पर, ठीक है, टिकटॉक पे ट्राई करो, क्या म्यूजिशियंस हैं, क्या ऐसी कुछ फनी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ, तुम देख रहे हो मीम्स पे बहुत गाने फेमस हो जाते हैं, है ना। मीम्स पे लोग कोई मीम पकड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर डीजे अपना रैप चला देते हैं और डीजे का गाना भी चल जाता है और वो मीम भी चल जाता है, ठीक है। ये आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत डीजेस ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यूनिक करना बहुत जरूरी है आज के कॉन्टेक्स्ट में, जो आजकल चीजें चल रही हैं और 5 साल बाद जो चीजें चलेंगी उसके अकॉर्डिंग करना चीजें बहुत जरूरी है। राइट, ठीक है। आई थिंक सेकंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है यश सोनी का। सर यू क्रैक्ड IIM कैलकाटा। अब कॉलेज का नाम जिंदगी में मैटर कितना करता है? क्योंकि इफ यू रिमेंबर आवर सेकंड थर्ड कन्वर्सेशन जब हम पहली बार मिले थे शायद, तो आई मेंशन कि मैंने तो IIM ड्रॉपआउट सिर्फ मतलब लिया ही इसलिए था ताकि मैं नाम अपने आगे लगा सकूं कि मेरे को एक IIM का ब्रांड टैग चाहिए। आई डोंट केयर वो कहीं भी हो, और मुझे ड्रॉपआउट ही करना था। ठीक है। How has IIM Calcutta as a brand acted in your life and how much importance would you give to it? यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ब्रांड अगर आपसे जुड़ जाए, अब देखो मेरे से बच्चे जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है, जो हमारा कोर्स परचेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज को देखते हैं यार बंदा SRCC से पढ़ा हुआ है या ड्रॉप आउट है, IIM कैलकाटा से ड्रॉप आउट है, तो वो चीज आपको डेफिनेटली बिल्कुल हेल्प करती है। तभी तो मैं कहता हूँ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन किताबों की इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया यार। अब आप इस चीज को कितना भी हेट करो, कितना भी लव करो, ठीक है, जो रियलिटी आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया की रियलिटी यही है, यहाँ पे ब्रांड मैटर करता है, ठीक है, यहाँ ब्रांड बहुत मैटर करता है, पहली चीज। और यहाँ पे जो आपको नॉलेज, जो एक्सपीरियंस, नॉलेज को छोड़ो यार, किताबी ज्ञान को छोड़ो, जो एक्सपीरियंस मिलता है कॉलेज से वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये ब्रांड ने मेरे को डेफिनेटली IIM कैलकाटा के और SRCC के ब्रांड ने मेरे को बहुत हेल्प करी है। इसी वजह से मैं कहता हूँ मैं MBA करूंगा, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से करूंगा, अहमदाबाद या बैंगलोर, या फिर मैं किसी आईवी लीग कॉलेज से करूंगा, पर मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ब्रांड भी और साथ में वो जो ब्रांडेड कॉलेजेस होते हैं ना, वहां पे जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा, जो एक्सपीरियंस गेन करते हो उन लोगों के साथ, उन टीचर्स के साथ, उस एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करता है। अगर मैं अपनी बात करूं यार, मैं एक ऐसी लोकेलिटी से हूँ, ऐसे स्कूल से हूँ जहाँ पे 0 एक्सपोजर था, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश बोलने पे भी मजाक उड़ा देते थे ठीक है। तो आई वाज लाइक फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, स्कूल में मैंने कुछ नहीं किया, हमारे आसपास के लोग कुछ नहीं कर रहे थे। अगर मैं लिटरली क्लास 12 के बाद सुखदेव ज्वाइन कर लेता, मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि SRCC में मैं गया और वहां पे मैंने जब देखा, लोगों को एक्सपीरियंस किया कि यार हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, ठीक है, हर इंसान कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ यार हर इंसान यार कुछ है यार, हर किसी में कोई फायर है, ठीक है, कुछ करने की फायर है, ठीक है। वो चीज मैंने वहां से सीखी, वो चुल जो होती है ना कि कुछ करना है, कुछ सोचना है, कुछ एक्सक्लूसिव करना है, कुछ बड़ा करना है, वो फायर जो है वो मुझे SRCC से सीखने को मिली, और वो चीज मैंने सुखदेव में जाके इम्प्लीमेंट करी। तो यार एक ब्रांडेड कॉलेज में जाने का ब्रांड का भी फायदा होता है और उस एनवायरमेंट का डेफिनेटली फायदा होता है। And I totally agree with you upon that. मतलब especially being in the education business, these tags matter a lot. Right. हमारे बिजनेस में करते, कई बिजनेस में नहीं करते। हाँ, और आई थिंक दूसरी चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहा कि इन्वायरमेंट होना। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे इंग्लिश जिंदगी में हमने बोली नहीं है। मेरा सेम हाल था यार, आई कम फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड। हमने कभी इंग्लिश कोई बोलता था तो मजाक उड़ता था, और कॉलेज में जब तक घुसे हैं, मेरा तो बस अनफॉर्चुनेट ये था, आई वेंट टू रामजस, और वहां तो वैसे ही जिंदगी में कुछ कर नहीं रहा था मेरे आसपास होता। सो आई वाज जस्ट फॉर्चुनेट इनफ टू लैंड अप सम गुड प्लेसेस, और वहां से मेरा नेटवर्क ग्रो होता चला गया। बट हैविंग राइट सेट ऑफ पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव। ट्रू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक इंसान पूछ रहा है काफी देर से
मुझे कंफर्टेबल नहीं होना अपनी जिंदगी में, बट साथ ही साथ ऐसा काम करना है जो एफर्टलेसली ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, कि मतलब कंफर्टेबल भी नहीं होना और एफर्टलेसली भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। यार काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मेरे को तो आंसर समझ नहीं आ रहा है इसका। मुझे भी ज्यादा कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, पर एफर्टलेसली वर्ड का मैं यही जवाब दूंगा, मेरे को जो एक वर्ड समझ में आया है, इफ यू वांट टू डू ग्रेट इन लाइफ, एफर्टलेसली नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बिना कुछ नहीं आप। Moving on to the last question, particularly around YouTube. Mahima, if you want, you can ask the question yourself as well. Hi, Prince. Hi, Shivansh. Actually, I wanted to ask that, how active were you on YouTube? How many YouTube videos did you use to upload in a month? Yeah, if I talk about in the beginning, तो मैंने सेकंड ईयर के अराउंड स्टार्ट किया था, राइट, फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टार्ट में, ठीक है। उस टाइम कुछ ऐसा एक्टिव का सीन नहीं था, ठीक है। जब टाइम मिलता था मैं तब बना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो इतना ज्यादा कुछ था नहीं, इतना ज्यादा मेरा वो तो था नहीं यार कि हाँ यार इसी पे काम करना है, बस एक मन था और एक विजन थी कि ये कुछ करेगा, तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उस टाइम सीन यार ऐसा था, जब टाइम मिलता था मैं तब बनाता था, क्योंकि कॉलेज भी चल रहा था। थर्ड ईयर में मैं अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से मैं फाउंडर भी रहा था, ठीक है। उस टाइम मैं उस चीज को लीड भी कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम बहुत ज्यादा वर्कलोड, मतलब मुझे हैबिट है, मैं बहुत ज्यादा वर्कलोड लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यार उस टाइम बिजी बहुत ज्यादा था, कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म करना था, मेरे को थोड़ा ऐसा शौक भी था कि मैं एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करूं। मेरी सीजीपीए बहुत अच्छी रही थी कॉलेज के थ्रू आउट। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो बिल्कुल बर्बाद थी, 4.7 4.8 समथिंग थी, पर उसके बाद फिर मैंने मेक श्योर किया कि 8 अबव रहे और 9 अबव भी रही कई बार, ठीक है। तो यार जब मेरे को टाइम मिलता था मैं तभी पोस्ट कर देता था, मतलब उस टाइम कुछ ऐसा फिक्स नहीं था। महीने की कितनी वीडियो सर भी अप्रोक्सीमेटली? कुछ नहीं यार, मैं कुछ नहीं कह सकता इस नंबर पे। मेरा ये था, मेरा ना कोई टारगेट था, ना मेरा कुछ फिक्स था और ना ऐसा कुछ था। मेरा बस ये सीन था कि जब फ्री होता था मैं तब पोस्ट करता था। यार जैसे अब एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूं दिसंबर नवंबर के महीने में डेफिनेटली मैं कुछ पोस्ट नहीं करता था, ठीक है। जब मिड सेम ब्रेक होते तब मैं पोस्ट करता था। तो या इट वाज लाइक दैट, और जितनी मेरे से पोस्ट हो सकती थी मैं उतनी करता था, जितना मेरा मन करता था और जितना मैं अपने आप को पुश करता था उस हिसाब से करता था। ऐसा कुछ फिक्स नंबर तो बिल्कुल भी नहीं था स्टार्टिंग में। तो सर ऐसा कुछ होता है कि अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड करो, ओनली आफ्टर दैट यू गेट व्यूअर्स एंड ऑल बढ़ना स्टार्ट होते हैं? कुछ नहीं है, मिनिमम नंबर कुछ नहीं होता यार। आपका ये भी हो सकता है आप एक वीडियो में इतना अच्छा कंटेंट बना दो कि आपकी एक वीडियो शूट अप कर जाए, ठीक है, या फिर वायरल हो जाए, गलती से भी होता है ऐसा, पर वो चीज बहुत कम होती है, ठीक है। बाकी आपको ये है चीज कि आपको ट्राई करते जाना चाहिए, और डेफिनेटली 2 चीजें मैं इसमें बोलूंगा। डेफिनेटली आपको एक तो थोड़ा मेरी तरह मैं बहुत इरेगुलर था, वो गलती थी, ठीक है। आपको डेफिनेटली रेगुलरली ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कोशिश करनी चाहिए डालने की। कितना डालना है और कब डालना है इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जैसे मैं क्लास 12 के बच्चों से डील कर रहा था, तो मैंने एक चीज बहुत लेट रियलाइज करी कि अगर मैं एग्जाम के मंथ्स में यानी जनवरी फरवरी और मार्च में पोस्ट करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने बहुत लेट रियलाइज करी, ठीक है। तो मुझे जनवरी फरवरी और मार्च में मैं रेगुलर पोस्ट करता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। कोशिश यही रहती है दिन की एक वीडियो या 2-3 दिन में एक वीडियो तो जरूर पोस्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है अपनी ऑडियंस का कि आपकी ऑडियंस ज्यादातर कब एक्टिव होती है। अब जैसे क्वारंटाइन का टाइम है, सब घर पे, तो इस टाइम तो बिल्कुल डेफिनेटली टाइम इतनी आई बॉल्स है इंटरनेट पे, इतनी आई बॉल्स है, तो आपको उसको डेफिनेटली, अगर मैं एक कॉमेडियन होता या मैं किसी भी तरीके का कंटेंट बना रहा होता, ठीक है, मेरा कॉन्टेक्स्ट अभी अलग है, ठीक है, बट अगर मैं कुछ भी नया स्टार्ट कर रहा होता मैं इस टाइम बिल्कुल रेगुलर डेली एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करता, ठीक है, क्योंकि इस टाइम बहुत लोग हैं इंटरनेट पे, तो उसकी मैं पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करता। तो आपको तब पोस्ट करना है जब आपकी ऑडियंस ज्यादातर एक्टिव हो, और आपको कोशिश यही करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें। I would like to ask, how should we practice focusing at a particular job at hand? So last question मैं ही आंसर कर देता हूँ. It's more about how to focus on your work. For someone who has asked this question, it's all about how, मतलब तुम्हारी जिंदगी में उसकी importance क्या है. अगर importance है, you'll find a way to focus on that. Distraction हटानी पड़ेगी, अपने passion पे focus करना पड़ेगा. Listen to any sort of music, watch any sort of motivational videos, but make sure you keep going towards that goal. This is a time to make sure that you can focus all your time upon anything you want, और दिन के 12, 14, 16 घंटे भी दे सकते हो, because
there's literally nothing stopping you, no friend of yours, no college, nothing out there which could stop you right now. So that is my 2 piece of advice upon that. And I think with that, Prince, let's end this question. मैं आपको और प्रॉब्लम नहीं दूंगा, ऑलरेडी आपने काफी टाइम दे दिया, हम चाहेंगे नहीं कि आपको आवाज आने में भी प्रॉब्लम हो. और थैंक्स फॉर बीइंग हियर, and thanks a lot for everyone who was there, guys.